I'm Tamkin Riaz. Assalamu alaikum and welcome. It's Tuesday, it's 6:30, it means one thing. You're watching the iBiz show on Islam Channel Urdu, Sky 851, and also we are now on Virgin Media 839 as well. Also, you can probably watch us as well on the World Wide Web on Islam Channel Urdu. And also, for those who've got Facebook, we're live on Facebook as well on mine and all the other channels. So, it's been a while now that Faisal and myself, we haven't had a discussion amongst ourselves and to help educate you a little bit about taking your business to the next level. Now, why take your business to the next level? Or if you're thinking of doing a business, why not think big? And when I say big, I mean big. So I'll leave it there for a moment and let me say salam to my co-host. Assalamu alaikum, Mir Faisal Talpur. How are you? Alhamdulillah. Weather is brilliant again. The sun is shining. It's been a couple of weeks now, mashallah. Lovely weather. जी हर किसी का अलग-अलग perspective है whether weather is brilliant or not. जी. मगर it's been good, nice and sunny. Well, in this country, we'd like to see the sun as much as possible. बिल्कुल. So, what are we going to be talking about today? Going global. Global. So let me do the introduction. So, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मीर फैसल तालपुर और तमकिन रियाज़ एक बार फिर आपके फेवरेट बिज़नेस शो iBiz के साथ हाज़िर हैं। आज का हमारा मौजू है गोइंग ग्लोबल, मार्केटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ गोइंग ग्लोबल। नाज़रीन, जब भी हमको कोई बिज़नेस करते हैं या किसी भी किस्म का कोई कारोबार करना चाहते हैं तो हमारा एक माइंडसेट होता है और माइंडसेट ये होता है कि भाई इंशाल्लाह वो हमें मुनाफा देगा, फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। कोई भी ये नहीं सोचता कि भाई मैं ये बिज़नेस करने लगाऊं और अल्लाह ताला चाहे कि इस बिज़नेस में नुकसान हो या इंशाल्लाह मुझे नुकसान हो इस बिज़नेस में। इंसान जो है ना वो एक गुडविल के साथ ही बिज़नेस में घुसता है और इंशाल्लाह कुछ बिज़नेसेस ऐसे होते हैं माशाल्लाह जो अपने लोकल टेरिटरी को छोड़ के जो है वो इंटरनेशनल एक्सपेंशन की तरफ जो है वो देखते हैं। माशाल्लाह मेरा ख़ुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है और ये एक माइंडसेट और थिंकिंग का भी होता है कि भाई वो हम लोग जब बच्चे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि भाई थिंक बिग, ड्रीम बिग, थिंक बिग। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक आप जो है वो चाँद सितारों के बारे में नहीं सोचोगे तो आप जो है वो कभी भी उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचने का तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। तो that's what the topic is, going global. Going global. But why global? What's wrong with just your little business just ticking away nicely? Or is going global for everyone? Before we go further with going global, today is our 25th episode. Oh, mashallah. So, mashallah, it's the silver jubilee of the show. So, are we going to have a candle and cakes and blow them out? We should. How about doing it on the 26th one? Absolutely. We should be doing Or when that. we move to the new studio, inshallah. You know, our journey, mashallah, जो है वो 17 जनवरी को start हुई, 2017. 17/01/17, yes. बिल्कुल। तो हर हफ्ते जो है वो माशाल्लाह शो जो है वो कामयाब से कामयाब तर रहा है। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नाजरीन को चीज़ पसंद आ रही है या नहीं। आई मीन आर वी एडिंग वैल्यू? क्या लोग वहाँ पे बाहर बैठे हुए जो हमारा शो देख रहे हैं क्या वो कुछ सीख रहे हैं? और दी आइडिया है कि अगर वो 2 या 4 चीज़ें भी सीख लें और उसको अपनी बिज़नेस की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो ये समझे हमारा सदका जारी हो गया। हमारा तो हो गया इसलिए कि every time we are out and about, even when you're in Dubai and whatever, people come up to us. Absolutely. And then we also have all the records from emails and texts and people calling us personally and saying we've seen you on TV, we enjoy your show. I think we've got a bit of a fan following as well now. And alhamdulillah, I think we've had a very positive feedback. Yes. बहुत और पता है बहुत दिली खुशी तब होती है जब अगला बंदा आपको ये बोलता है कि भाई मैंने कुछ सीखा। Yes. अभी 3 दिन पहले ही जो है मैं किसी उसमें इनविटेशन पे मैं गया हुआ था एंड somebody caught me एंड वो माशाल्लाह आधे घंटे मेरे साथ रहा है। अच्छा। और उसने कहा कि भाई हमने आपके शो से मैं बिज़नेस वगैरह करता हूँ और मैं और बिज़नेस में एक्सपेंशन भी करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई वॉच इट वेरी केयरफुली बिकॉज हम लोग मैंने इस चीज़ से बहुत सीखा है एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज दैट्स द होल रीज़न ऑफ Islam channel doing this show, us doing this show. And he's not even Urdu speaking either. He's a Bengali. He's Bengali. Yes, I Absolutely. remember Bengali.
So and वो जब भी मिस कर जाता है तो वो YouTube पे भी देखता है माशाल्लाह हमारा शो. Very good. Sorry, so that's what it is. नाज़रीन 25 episodes माशाल्लाह. But I've heard a little rumor that there are other channels trying to copy what we've done. That's right. And not been successful. That's right. And people said, no, we saw the other, we prefer your program. जी. So that's some feedback we've got. जी, somebody has has started, but you know ये वही वाली बात है ना कि all this is all about content. Content. Right? कि आप कितना content provide कर रहे हो, और content आप तब तक provide नहीं कर सकते हो जब तक वो अंदर से नहीं आता, एक experience नहीं आपका बोल रहा होता. और अल्लाह का शुक्र है हम दोनों का ठीक ठाक एक्सपीरियंस है इस बारे में. तो वी डोंट नो हु द अदर होस्ट्स विल बी ऑन अदर शोज, मगर एज लॉन्ग एज हम लोग जो है ना वो but we do our homework, plus we have the experience. Now, you know, we have 15 sheets here that we have researched and done our homework, and from our experience we have made notes so that we can pass on this information. Bilkul. You see, some people, they just come on TV and they just start talking, but we actually have been there, done it, and then try to improve what we've done. That's the whole point. वही मैंने कहा ना, कंटेंट अगर आपका कंटेंट जो है वो अच्छा है, then people will like it because वो एक कनेक्शन बन जाता है. they can identify कि भाई वाकई ये मेरा कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगी चीज़. नहीं तो किसके पास है कि भाई एक टाइम है कि भाई आजकल के ज़माने में 1 घंटा जो है ना वो लगाए, unless it's actually resolving some issues or some problems. So, you know, and the good thing is they can watch it, you know, all over the world, and also YouTube eventually, and on the Islam channel Urdu website as well. So, you know, if they miss a program for any reason, they can always go back. बिल्कुल. So that's a really good thing as well. आपने सवाल पूछा था why go global? And is it for everyone? And no, it certainly is not for everybody. Going global का इस तरीके से है तमकीन कि हमारा जो बिज़नेस है वो डिपेंड करता है कि आप, पहली बात तो डिपेंड करता है आप किस टाइप के बिज़नेस में हैं, राइट. आपका किस टाइप का बिज़नेस है, उसकी किस टाइप की मार्केट है लोकली. उसूलन तो होना ये चाहिए कि आप कोशिश करें कि आप अपना बिज़नेस जो है वो लोकल मार्केट के अंदर आप सेटअप करें, राइट. और उसके अंदर ही आप जो है अपनी क्लाइंटेल बनाएं और फिर आप बाहर जाने का सोचें. मगर ये रूल भी हर बिज़नेस में अप्लाई नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगरचे कि आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट, हो सकता है आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका लोकल कोई मार्केट हो ही नहीं, राइट. ये भी हो सकता है कि लोकल मार्केट है मगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि वो लोकल मार्केट में बिक नहीं सकता, राइट. तो इसकी बहुत सारे वजूहात होती हैं. इसलिए ज़रूरी नहीं है, दोनों चीज़ों पे ये अप्लाई करता है. ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए गोइंग ग्लोबल ज़रूरी हो, एज एन आपके बिज़नेस के लिए अप्लाई करता हो, और ये भी ज़रूरी है कि गोइंग ग्लोबल ही अप्लाई करता हो, क्योंकि लोकल मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चल सकती. Rolls-Royce, if you're making the Rolls-Royce product for local market where there's 50% unemployment, everyone is working on benefits, then obviously it's not going to sell there. बिल्कुल, बिल्कुल. But then there again, if you have a very good product that you all need and it's cheap, and they need it on a daily basis or weekly basis, they will buy it. बिल्कुल. Because of the need. So you have to work out these things. और I mean there are many reasons. देखिए आपके जो है ना, एक तो ये भी रीज़न हो सकता है कि कई दफ़ा ये होता है कि going global is actually cheaper. राइट, एज़ कम्पेयर टू डूइंग बिजनेस वे यू स्टैंड, जहाँ पर आप हैं. अब यूके के अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें वो एक्सपेंसिव हैं, राइट, because of the standards and the testing and the wages and the salaries and the overheads. Exactly. तो in a way आप ये कह सकते हैं कि भाई I have limited opportunity to grow. ठीक है ना. तो अगर से कि आपकी limited opportunity, तो you should start exploring. और आजकल का ज़माना तो आज से 20 या 25 साल पहले जब इंटरनेट नहीं होता था और जो है वो आपको इतना फ्रीली इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल नहीं होती थी. No eBay, no Amazon, no portals, whatever. Exactly. तो everything was very difficult, right? अब तो आपको पता है माशाल्लाह, आप एक वेबसाइट बनाएं, हालांकि उसको भी आपको एक ग्लोबल उस सहनियत से बनाना पड़ता है कि भाई आप ये ग्लोबल वेबसाइट बना रहे हैं, आप It can more preferable of course. मगर उसके अलावा भी it's the content, it's the imagery, right? उसका जो है पूरे यूज़र जर्नीज जो कुछ भी बनता है, मतलब आपको एक उसको उसी पहलू से लेकर चलें कि भाई आप एक ग्लोबल बिजनेस आप बनाना चाह रहे हैं या आप एक्सपेंशन आप ग्लोबल करना चाह रहे हैं. And then which countries are you going? Because different countries have different formats, different cultures. बिल्कुल. For example, white in China means death. Yes. जी.
And red is good in China. It's for gifts. Right. So you have to lower the local markets of going globally as well बहुत as. ज़रूरी है. So you know, बहुत ज़रूरी it will not all work. नहीं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है. देखिए हमारे अंदर जो कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ के जो रहन सहन है, तौर तरीके हैं, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते. द मोमेंट यू इग्नोर एंड बहुत सारे बड़े बड़े फेलियर्स देखे हैं हम लोगों ने, जो कि बिलियंस ऑफ पाउंड्स ऑफ वर्थ ऑफ कंपनीज जो है ना वो फेल हो गई हैं. ब्रांडिंग भी किसी ने नाम गलत रख दे, it means something in a different language. बिल्कुल. Good and bad. It may mean an insult. An insult, yes, there was a Absolutely. very famous, 2 or 3 famous ones. I Exactly. won't mention what the word was, but it was a curry dish. I will tell you later what it was, but it was not a very nice word. Exactly. In the other countries. I think I know which one you are referring to. Yes. And ये बहुत ज़रूरी होता है. तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं कंट्री में, चाहे आप नाज़रीन, ज़रूरी नहीं है कि आप यूके में बैठे हुए हो और या हमारा आप शो देख रहे हो, आप जर्मनी में हो सकते हैं, आप ये माशाल्लाह पूरे यूरोप के अंदर ब्रॉडकास्ट होता है, आप कहीं पे भी होते हैं. तो आप जहाँ पर भी हों और अगर आप गोइंग ग्लोबल सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास उस वक्त वन ऑफ द रीज़न कैन बी कि आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जिस भी मुल्क में बैठे हैं. और जैसे आपने अंडरस्टैंडिंग कल्चर्स का, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एंड रिसर्च जो है किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है. आपको सिर्फ देखें ना, you have to plan, and don't forget, talking about planning, you know we're going to take calls as well, inshallah. Yes, so you know what. Don't forget, callers, please, inshallah. If you want to call in, you're most welcome to call in. You can also text us as well, email us. You know, as many people do after the show and during the show. But you know, call us and we can answer your questions live. अच्छा, एक और रीज़न जो है वो गोइंग ग्लोबल का ये है कि भाई आपने प्रोडक्ट तो आपने एक मुल्क में बनाया, फिर आपने जो है उस प्रोडक्ट को आपने उस मुल्क में लॉन्च किया, मगर कई दफ़ा ये होता है कि उस मुल्क के अंदर आपका जो फीडबैक होता है वो उतना अच्छा या उतना वेल रिसीव नहीं होता. तो उसको भी आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे, राइट, आप उसको एक दूसरे मुल्क में लॉन्च करके देख सकते हैं कि भाई उसका क्या रिएक्शन है. They might not like the color, they might want it bigger, they might want it smaller, so you will get feedback from the local people and say, look, if you adjust it slightly. Exactly. Refinement. Refine it. Refinement, finesse add करना है, उसको जो ना tweak and change, जैसे कि आपने कहा, fine tune करना है. और कई दफ़ा ये होता है कि आपने अगरचे कि उसको एक different environment में fine tune किया and आप उन्हें उसको bring back किया अपने original environment में, it may become a success. That's right. Right? तो अनफॉर्चुनेटली क्रिस्टल बॉल किसी के पास नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के. तो अपना इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि भाई यू हैव टू टेस्ट सर्टन थिंग्स. और इसके अंदर एक कॉस्ट फैक्टर जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आपको ये देखना है कि अगरचे कि आपका जो कॉस्ट एलिमेंट है वो आपका ज़्यादा है या कम है, जैसे कि मैंने अभी also, बोला. and also exporting to the different countries and the tariffs of import export, whether the raw Exchange materials rate. are there, whether you should set up a small manufacturing plant locally, maybe cheaper than producing here and then exporting. Rules and regulations, so you have to look at everything. बिल्कुल बिल्कुल. ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, मेरा ख्याल है इस वक्त हम लोग स्लाइड भी दिखा सकते हैं. बिल्कुल. Slide have a look at slide 1, inshallah. There we go, mashallah. Reasons for going global. तो जो फोर्थ पॉइंट है, फन, वैरायटी एंड चैलेंजिंग. Oh, that sounds nice. That is nice. इसके अंदर ये तमकीन के बहुत दफ़ा आप लोकल मार्केट आप मास्टर कर चुके हो सकता है, और फिर आप बोर होना शुरू हो जाते हो. Plateau, it hits a plateau. You have to go to the next slight level and tweak it. That's right. वो फिर एक जो है ना वो कहते हैं ना कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आनी शुरू हो जाती है आपके It's ग्राफ में. automated, it's running normally, सब people कुछ are चल रहा है, कोई bored. एक्साइटमेंट नहीं है. और फिर कई दफ़ा फिर ये होता है, फिर बंदे जो है ना वो जो है ना फिर कंप्लेसेंसी हिट्स, राइट. और फिर आप कहते हो यार इसको जो है ना ढीला छोड़ दो. इससे अच्छा ये है कि आप उस चीज़ को, अगरचे कि आप ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी डन ऑन अ ग्रोसरी स्टोर, Yes. राइट. एक्चुअली इट कैन बी इफ यू डू Well, import and export of groceries. you can you know, get orders abroad and deliver them. Exactly. That's right. Well, you know, if they want to if pay you the have extra. if you have a foresight like that, of course you can. तो कहने का मकसद ये कि कई दफ़ा लोग करते हैं फ़न की वजह से या चैलेंज, एक नया चैलेंज के लिए कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट जो है इसके अंदर मैंने तो महारत हासिल कर ली है इस मुल्क में, राइट. हाउ अबाउट आई एक्सप्लोर डिफरेंट कंट्रीज़. अच्छा, जो नेक्स्ट रीज़न है इंक्रीज प्रॉफिट, टर्नओवर एंड कैश फ्लो, तो बहुत ही ज़रूरी रीज़न है, राइट.
And research and development का भी है, and then also you can get some tax breaks as well. Of course you do, of course you do. And गवर्नमेंट का तो एक डिपार्टमेंट जो है इन्होंने पूरा का पूरा जो बल्कि कई डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, UKTI जो है ये नाज़रीन अब मैं UK की बात कर रहा हूँ तो जो है UKTI है, उसके अलावा DTI है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, एक्सपोर्टिंग एंड ग्रेड जो है उसके बैनर के नीचे ये सारे जो है वो आते हैं। गोइंग ग्लोबल भी शायद है एक, जी बिल्कुल, गोइंग ग्लोबल जो है वो भी एक उसका एक हिस्सा है। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ पर इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो इस तरह की बहुत सारी हेल्प मौजूद है। ऑब्वियसली इनका पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है। पर्सनल इंटरेस्ट गवर्नमेंट का ये है कि अगर आपने एज अ यूके कंपनी अगर आपने एक्सपोर्ट की तो आपको आप जो पैसे बनाएंगे उसके ऊपर इनको टैक्स मिलेगा। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दे आर हेल्पिंग यू टू अर्न देमसेल्फ। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, इट्स अ विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीबडी। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो प्रॉफिट और सेल्स की जो हम लोग बात कर रहे थे, इंक्रीज प्रॉफिट, टर्नओवर एंड कैश फ्लो। कई दफ़ा ये होता है कि आपका जो टर्नओवर है वो आप अगेन वही प्लेटो वाली बात कि आप एक सर्टन लेवल पे पहुंच के ना आप अटक गए हो, आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर सक रहे हो। दैट्स वे आपको चाहिए कि आप दूसरी नई नई मार्केट्स एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें। अच्छा, इसमें भी एक जो है वो टेक्निक है। वो टेक्निक ये है कि तकरीबन कोई 203 कंट्रीज़ हैं अब, राइट, आफ्टर ऑल द स्प्लिट्स एंड एवरीथिंग। तो आपको ये चाहिए कि भाई आप अपने एलिमेंट्स को आप ये देखें कि भाई कौन सी कंट्रीज़ के अंदर आपके लिए आसानी होगा जाना, राइट। आप ज़बान समझ सकते हैं, आप लोकल कल्चर आप समझ सकते हैं, या फिर आप किसी को एम्प्लॉय कर सकते हैं जो लोकल कल्चर समझता हो। एंड द गुड थिंग इज दैट इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिल्कुल, which is good for us, and also covers most of the countries. That's one advantage we have in the UK. The second advantage we have in the UK is everyone wants a product which has England or UK on it. Have you noticed that as well? No matter where you go in the world, if it says UK England, they love it. Also Germany, they know its quality. Japan, they know. So every country has it. But as soon as they say UK England, and then it's all in English, they love it worldwide. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, क्योंकि माशाल्लाह किसी भी बिज़नेस के अंदर ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होती है, राइट। एंड जो यूके या जर्मनी या जो अच्छी अच्छी कंट्रीज़ के अंदर जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, ये तो बस ये समझें कि उनके लिए एक एब्सोल्युटली बोनस पॉइंट है कि भाई विदाउट डूइंग एनीथिंग, we got 2 bonuses straight away. बिल्कुल, कि भाई आप तो यूरोपियन यूनियन में फॉर एग्जांपल एंड आप यूके में या आप जर्मनी में, राइट। तो वो एक स्टैंडर्ड भी होता है। बिल्कुल, एंड दैट्स वेरी गुड। एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर तो आपका एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी फिर सेट हो जाता है कि भाई एक यूके ब्रांड के साथ एक कंपनी जो है ना वो एक्सपोर्ट कर रही है। And there'll be no hera-peri because it's UK governed, the laws are very strict there, import, export, you know, so we have more advantages than disadvantages for exporting. Of course, absolutely yes, absolutely yes. अच्छा, एक और रीज़न जो है, जो छठा रीज़न है वो है competitiveness, ठीक है ना। डेवलप्ड मार्केट्स का बोले। I was just going to say, talking about competitiveness, also at the moment, you know, the pound goes up and down, so you've got the foreign exchange as well. So at the moment, you know, to buy something from the UK is relatively 20% cheaper at the moment than it was. That's right. Before. That's so right. The competition is good as well at the moment. Bilkul. But what's going to happen in the future, obviously? We don't know. Forex up and down, exchange rates, but that's another little point. नहीं, absolutely. कंपेटिटिवनेस के बारे में मैं ये कह रहा था कि भाई जो हमारी जो सैचुरेटेड मार्केट्स हैं, राइट, जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, सॉरी, वो सैचुरेटेड है काफ़ी, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम ले लें या अदर डेवलप्ड वर्ल्ड आप ले लें, तो उसके अंदर आप ये देखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस, आप किसी भी चीज़ के अंदर, आप किसी भी बिज़नेस के अंदर अगर आप जाने का सोचते हैं तो 90 to 98% ऑफ द टाइम उसके अंदर पहले ही 1000 बंदा बैठा है, राइट, या 10,000 बंदा बैठा है, राइट। तो आप अपना जो है वो कम्पिटिटिव एज आप कैसे बना सकते हैं? जी, राइट। तो कॉल ले लेते हैं पहले, इंशाल्लाह। अस्सलाम अलैकुम कॉलर, यू आर लाइव। Where are you calling from and your name please? जी, वालेकुम सलाम जी। Oh sir, अस्सलाम अलैकुम सर। जी, मैं खालिद जावेद ग्लासगो से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं खालिद भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह।
Yeah. Nice to see your program again, mashallah. Alhamdulillah. Thank you. Yeah, I'm fine, Faisal bhai. आपका प्रोग्राम बड़ी दिल लगी से देख रहे हैं. Jazakallah. Always as usual, you bring a new point to the viewers और अच्छी बातें करते हैं कारोबार की हैसियत के लिए, जो यहाँ जरूरी है कारोबार शख्सियतों के लिए. लेकिन भाई आपका जो प्रोग्राम देख रहा था उसमें बहुत अच्छी पॉइंट आपने मेंशन की है. जरा मैं ये चाहूँ कि आप अपना कारोबार तजर्बे से मुझे ये समझाइए या ऑडियंस को भी कि एक चीज है आप यहाँ बेच रहे हैं क्योंकि उसकी डिमांड है तो आप उस डिमांड को सप्लाई कर रहे हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड नहीं है लेकिन आप उसकी सप्लाई बढ़ना चाहते हैं. तो मैंने ये देखा कि अक्सर कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है कोई खरीद रहा उसमें थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग जो कहते हैं मार्केट एक्सपोजर कर दो तो वो कारोबार बहुत अच्छा चल सकता है. जैसे आजकल आपने देखा है कि बच्चों का एक नया खिलौना निकला जिसको फिजेट कहते हैं. जी. पहले तो कभी इसके बारे में कभी सुना नहीं लेकिन थोड़ी देर में एडवर्टाइजिंग करके वो जिसने भी निकाला है इज डूइंग वेरी वेल. तो मैं चाहूंगा कि जरा ये डिमांड और सप्लाई और सप्लाई और डिमांड के बारे में जरा आप बताइए. Very good question. And inshallah you'll be coming to the show on the 17th, inshallah? I think it's the 18th after मुझे 18th, Tuesday the 18th. And we're looking forward to that, mashallah. Good. So thanks for the question. Good question, yeah. खालिद साहब, thank you very much for the question. मैं जवाब देना चाहूँगा इसका. ये इन्होंने बहुत अच्छा It's making a market, showing a market. मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊँ which is very strange. जी. Right. And the market trends have changed. Right. किसी ज़माने में होता था कि भाई आप जो है वो आपका डिमांड पहले आता था जी और आपका सप्लाई बाद में आता था. ठीक है ना. तो आपकी किसी भी चीज़ की आपकी डिमांड है और उसके बाद जो है ना वो आपने उस चीज़ को सप्लाई करना शुरू कर दिया. अच्छा, उससे एक टर्म भी निकली, कॉपी कैट भी लोग भी कर देते थे उसको. बिल्कुल. उससे एक टर्म भी निकली कि भाई बिल्ड इट एंड दे विल कम. राइट. ये वही वाली बात है कि भाई आपने वो किया. मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, पिछले चंद सालों से स्पेशली लास्ट डेकेड हम लोगों ने बहुत सारी मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी हम लोगों ने चेंजेस डिफरेंसेस देखी हैं और उसके लाइव एग्जांपल्स में दूंगा. देखें, दो तरीके की मार्केटिंग होती है और थर्ड टाइप की कोई मार्केटिंग हो ही नहीं सकती. या जो प्रोडक्ट होती है, एक होता है भाई यू सप्लाई, आपके पास मार्केट है और आप उसके अंदर प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं. सो यू गॉट एन एग्जिस्टिंग मार्केट और उसके अंदर आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं. एक ये तरीका होता है मार्केटिंग का. दूसरा तरीका मार्केटिंग का नाज़रीन होता है कि आप मार्केट अपनी खुद बना रहे हैं. राइट. सो देयर आर ओनली टू वेज ऑफ मार्केटिंग. यू आर सप्लाइंग टू एन एग्जिस्टिंग मार्केट और यू क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट. Or persuading the buyers that this is a good thing and they should have it. Correct. Creating a new market का best examples ये हैं Facebook, LinkedIn, Twitter. दुनिया इनके बगैर भी चल रही थी. 2 billion on Facebook now, Marshall. 2 They billion have people. created the market. Yes. Issue होता है creating the market के अंदर कि you need a lot of money. Yes. तो it's a big boys game. Yes. ठीक है ना? Yes. Creating the market cannot be handled by small boys. Unless they make videos and go on Facebook and Twitter and they create a trend. And if it goes global, everyone will want the product. So this question of Khalid Javed Sahab is very interesting. Absolutely. और दूसरी बात ये कि एक और चीज़ जो खालिद साहब ने बोली उस पर मैं एक और हाईलाइट ये करना चाहूँगा कि वो जो बिल्ड इट एंड दे विल कम वाली बात है, अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है. अब कॉन्सेप्ट चेंज, ये जो विजिट वाली बात की है, ये भी ये अब एक डिफरेंट कैटेगरी में आता है. My friend imports 4 container loads a week from China. Mashallah. 4 container loads. Mashallah. He can't get enough. But the quality I've noticed is going down. So a lot of people are copying. Would not be surprised. And the quality is not that good from the original. बिल्कुल बिल्कुल. Basically ये एक different category में आता है. वो category है you start the supply first. Yes. And then the demand will follow. Yes. Do you see how things are being reversed in the marketing world now? तो वो कॉन्सेप्ट जो था ना कि भाई डिमांड है और आप उसको सप्लाई करना शुरू करो. राइट. लोग आम खाते हैं जी, आम के दरख्त लगाओ, आम बेचो. राइट. अब जो है वो सिनारियो डिफरेंट हो गया. तो नाउ यू आर सप्लाइंग without knowing is there is any demand, and naturally the demand is starting to be created. Do you see what I mean? And this is where the marketing comes in. Exactly. It's all about marketing. It's all about marketing. If you have sales will come if the marketing is right. That's right. But the salesman has to convince people. Bilkul. That's why you drip feed the marketing slowly.
and then you go for it big time. And but that all costs money, unless you are, you know, a very good social person on the internet. अच्छा, ये एक और बात मैं कहूँगा इस पे कि there are 52 methods of marketing. I'm not talking about types. There are over 2000 types of marketing, but there are 52 methods of marketing. बहुत लोगों को एक या दो methods भी नहीं पता, right? तो for you to be able to know marketing और marketing का गुरु अगर आपको बनना है, तो आपको इस चीज़ के अंदर जो है ना वो रिसर्च करनी पड़ती है, राइट? और उसके बाद फिर एक ये जो मैं आपको कह रहा हूँ 52 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, एक टाइप की अंदर 100 200 डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं. And what with the 52, you can do one type of marketing every week throughout the year. Yes. As well. Yes, exactly. I mean, देखें, combinative marketing, everybody knows works, right? बेस्ट ये है कि आप जो है वो हर किस्म का थोड़ा थोड़ा जो है करें. और ये बहुत सारे मार्केटिंग मेथड्स हैं, दे डोंट हैव टू बी एक्सपेंसिव. अगर आप अपना, अगरचे दो किस्म के मैं कहता हूँ लोगों के पास जो है ना वो मार्केटिंग पावर है. एक है ब्रेन पावर, एक है मनी पावर, राइट? अगर आपके पास मनी पावर नहीं है तो आप ब्रेन पावर यूज़ करें. You go to events, you go to networking events, you have your business cards, you go on social media, you make a blog, you make a video, you know, you send out letters, yes, campaigns, you do your elevator pitch, you know, you join trade and industry, you join local groups, you join international groups. So far, you know, 10, 12 things, you know, that's without costing. अच्छा, another thing, तमकिन, जो आपने just to add to what you just said, ये आप जैसे कह रहे हैं कुछ चीज़ें हैं ये एक्चुअली ग्लोबली अप्लाई करती हैं, राइट? कुछ चीज़ें ग्लोबली अप्लाई नहीं करती. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेटवर्किंग ऐसी चीज़ें ग्लोबली अप्लाई कर सकती है. तो यानी कि अगरचे कि लेट्स से यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस इन चाइना, राइट? तो आपको वहाँ पे अगर आपको ग्लोबल नेटवर्किंग करनी है, राइट, वहाँ पे भी आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, राइट? एंड इसके अंदर सिवाय एक टिकट के, फॉर एग्जांपल, यू डोंट हैव टू स्पेंड यू नो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स वाली बात. और आजकल तो जो है वो लिंक्डइन का ज़माना है, बहुत सारे इस तरह के सोशल ग्रुप्स हैं, उनका ज़माना है. Even Alibaba, you can go onto Alibaba and put your products and then market it, that go to Alibaba and look at my product, and everyone in the world will see it. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये है. अच्छा, एक और रीज़न जो है वो है पोजिशनिंग, राइट? कई दफ़ा ये होता है कि अब जैसे ये दिस इज़ रिलेटेड टू द सैचुरेशन इन अ मार्केट कि भाई अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रॉपर्टी बिजनेस में चला जाऊँ. मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रॉपर्टी बिजनेस में चला जाऊँ. कहाँ चला जाऊँ? लंदन में चला जाऊँ. अब मेरे से पहले कम से कम 10,000 प्रॉपर्टी एजेंट्स ऑलरेडी लंदन में मौजूद हैं. तो मेरा नंबर क्या होगा भाई? 10,001, राइट? अच्छा, अब अगर मुझे ऊपर आना है तो मुझे वही वाला पैसा पावर या इस्तेमाल करना है कि भाई मैं अपने आप को किस तरीके से पोजीशनिंग करूँ मार्केट के अंदर. पोजीशनिंग डिफरेंट किस्म की होती है. ऑब्वियसली देयर इज़ मार्केट पोजीशनिंग एंड देन देयर इज़ आल्सो टाइम पोजीशनिंग एज वेल, कि भाई आपके पोजीशनिंग टाइम की क्या है. तो मगर अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं, विच माशाल्लाह यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड इन, लेट्स से मैं प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ आई डोंट नो बरमूदा ट्रायंगल में, राइट? और आई गो टू वन ऑफ द मोस्ट अनसैचुरेटेड मार्केट्स, राइट? पाकिस्तान इज़ ऑल्सो बूमिंग, राइट? तो इफ़ आई गो इन टू एन अनसैचुरेटेड मार्केट, मेरी पोजिशनिंग विद द सेम अमाउंट ऑफ जो मेरे पास पैसा है, जो मेरे पास क्लाउट है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, वही पोजीशनिंग मेरी हो सकता है टॉप 100 में आ जाए. Because it's first mover advantage, and then you have advantage of knowing 101 techniques. जी बिल्कुल. As well. बिल्कुल. अच्छा, ये टेक्निक की आपने बड़ी अच्छी बात कही. बहुत आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड द वर्ड, क्योंकि टेक्निक जो है ये एक और चीज़ है, ये एक बहुत अहम चीज़ है. क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि आपने एक टेक्निक सीखी यूके में और आपने कोशिश की उसको अप्लाई, ज़रूरी नहीं है सक्सेसफुल हो, मगर अगर आप रिसर्च करें तो हो सकता है वो चीज़ आपकी पाकिस्तान में ज़्यादा सक्सेसफुल हो. अब जैसे ये जो I'll tell you what works in Pakistan, and I've tried this. You just speak English and they will follow you. अच्छा. That's why I'm speaking English. I've yet got to experience that. मगर देखिए ये क्लासिक एग्जांपल है. ये जो ये जो छोटे जो बच्चों की जो क्या कहते हैं जो मिनी स्कूटर्स हैं, वो जो एक पैर से जो चलाते हैं, इट्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम जापान. That's right. राइट? और यहाँ पे जिस लड़के ने इम्पोर्ट किया सॉरी, वो जो है वो एक यहाँ के यूके टू जापान एम्बेसडर का बेटा था. वो जब छोटा बच्चा था
वो जापान जाता था अपने फादर की जॉब की वजह से। तो वो जब वहाँ पे जाता था तो उसने देखा कि भाई ये तो अच्छी चीज़ है, एंड ही वाज ओनली 17-18, कैन यू इमेजिन। उसने कहा ये तो यूके में होनी चाहिए, राइट। ही हैज़ बिकम अ बिलियनर नाउ, राइट, बिकॉज उसने, अब तो खैर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मगर उसने इस चीज़ को एक्चुअली यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया आज से कोई 10 साल पहले, उससे पहले ये था ही नहीं, राइट। तो ये वही वाली बात है कि भाई आपने अगर एक प्रोडक्ट एक एनवायरनमेंट में उठाया और आपने दूसरे एनवायरनमेंट में डाल दिया, ऑफ कोर्स उसमें रिसर्च है, आपका लक है, आपकी रिसर्च है, बहुत कुछ एलिमेंट्स हैं, मगर अगर वो है तो वो कामयाब हो सकता है। Also, it depends also on the market size. For example, if you want to become a billionaire very, very quickly, I'll give you a tip. Very, very quickly, you want to become a billionaire. This is for everyone, yeah? Find a product you can sell to China and India. That's it. Even if it's $1 product, right? You'll be a billionaire. Market. Because, you know, 1 billion people in India, you know, almost 2 billion in China. So those two markets, you just target those two markets, inshallah, you know, and as long as you can persuade them to buy it, there you go. So I'm giving everyone a tip. Think of a product you can sell in India and China, and inshallah you will become a billionaire. As long as the product works. Nazreen, this but is. And any money you make from that, we want you to give 2.5% to charity, 2.5% to charity. Okay. Nazreen, this is a tip. It's not an advice or guidance. Please इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, कभी भी कोई चीज़ करने से पहले आप रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। ये एक बार मैं आपको फिर बताता चलूँ, एज जनरल नॉलेज प्रोग्राम है। ऑफ कोर्स एवरीबडीज सिचुएशन इज़ डिफरेंट और एवरीबडीज़ प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट, तो आप उस हिसाब से जो है ना वो रिसर्च कर लीजिएगा, अपनी टीम को साथ लेके चलिएगा, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट्स हों, अकाउंटेंट्स हों या क्या, तो दैट्स व्हाट इट इज़। अच्छा, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी and the loss of cost of opportunity as well. Absolutely. Got two costs. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगरचे कि मैं अगर ये पेन अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस मुल्क में, और अगरचे कि ये मुझे 5 पाउंड का पड़ रहा है ये पेन, तो जो है वो इस हिसाब से अगरचे कि ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में बनाना चाहूँ या सोमालिया में बनाना चाहूँ या किसी भी मुल्क में बनाना चाहूँ। नाज़रीन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 3rd नंबर पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इस वक्त, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और आप इस चीज़ के बारे में नोट्स भी बना सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके दोबारा आप देख भी सकते हैं, इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह चल जाएगा। बिल्कुल। तो कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो रही थी। कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई आपका जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपका या प्रोडक्ट है या सर्विस है या जो भी आप चीज़ करना चाह रहे हैं, उसकी कॉस्ट उस मुल्क में कितनी है जहाँ बैठें। कई दफ़ा ये होता है कि भाई आपने जो है वो चीज़ बनाई है, का भी कॉस्ट ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दैट एड्स अप, एंड अगरचे कि आप ये समझते हैं कि कोई दूसरी मार्केट जो है उसमें आपकी चीज़ सस्ती बन सकती है या सस्ती बिक सकती है, but the quality has to be there. Absolutely. Then you know you should explore that once again. Of course. तो ये है। अच्छा, मनी सेविंग, everybody's favorite. Our favorite. बिल्कुल। तो जो है वो मनी सेविंग के अंदर यह है कि जी आपका जो है अगर आप बेहतर प्रोडक्ट या बेहतर प्राइस अगर आप जो है वो बना सकते हैं बेटर सेविंग ऑफ मनी से, यानी कि आपने कम पैसा खर्च करके आपने बेहतर प्राइस बनाया, प्रोडक्ट बनाया है, तो ये एक और दूसरा कंसिडरेशन हो सकता है आपका गोइंग ग्लोबल जाने के लिए। यस, राइट। तो ये है। अच्छा, एप्रिसिएशन एंड वैल्यू। यस, राइट। Always add value and give extra. अच्छा, ये That's what I always say. That's right. अच्छा, ये पॉइंट जो है वो रिलेटेड है अगेन आपकी सैचुरेशन से भी, राइट। अगरचे कि आप वन ऑफ द 10,000 पीपल हैं उस बिज़नेस के अंदर या वन ऑफ द 1 लाख पीपल हैं आप उस बिज़नेस के अंदर, तो शायद आपको उस टाइप की अप्रिसिएशन या आपको यू विल नॉट फील द वैल्यू कि भाई आपकी कोई भी चीज़ आप करते हैं तो आप चाहते हैं कि भाई आपको सराहा जाए। Very good. So we're going to go to a break in 1 minute, so if you can do another point or carry on the point. तो बेसिकली अप्रिसिएशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा जो है ना लोग ये कहते हैं कि यार पैसा जो है वो तो अहम है, मगर उससे ज़्यादा अहम ये है कि मैंने ये जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसको सराहा जाए, उस चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया जाए। हो सकता है उसकी अप्रिसिएशन जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ नहीं हो, मगर उसकी शायद अप्रिसिएशन किसी दूसरे मुल्क में उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, इसलिए उसकी शायद उसकी अप्रिसिएशन भी उसकी ज़्यादा हो कि भाई लोग अप्रिशिएट करें कि भाई ये वाकई ये चीज़ यहाँ पर आई है।
ठीक है. In the West, we are inundated with so many products and services and so easy to get to. But in some other countries, it's very difficult. So inshallah, we're going to a break now, and we will see you on the other side of the break. Inshallah, see you on the iBiz show on the other side. I'm Tamkin Riaz, and welcome back to the second part of the iBiz show. We are discussing international business and how to take your business globally. And we've been discussing many aspects of taking your business globally and how you can take your business globally. So we were discussing that, Faisal, and obviously we're going to go on to slide 3 in a moment. But how do you protect your products as well? And then how do you find the right partners? So that's something interesting that I think people would like to know. बिल्कुल बहुत ज़रूरी है. देखिए, अगरचे कि आप कुछ भी वहाँ पे करना चाह रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपके आइडियाज़ जो हैं वो स्टील ना हो, आपके आइडियाज़ जो हैं वो चुराए ना जाएं, या जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसके अंदर जो है ना दूसरे लोग जो है ना वो अपना इनपुट देना या चोरी करना शुरू ना कर दें. तो बहुत सारे तरीके होते हैं, एंड स्पेशली अगरचे कि आप एक डेवलप्ड वर्ल्ड से अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो यू हैव गॉट एडिशनल एडवांटेज कि भाई लॉ जो है ना वो आपको बैकअप करता है, बैक करता है. तो एंड आपको पता है माशाल्लाह यूके के अंदर जो लॉ है वो तो इट्स वेरी वेल डिफाइंड, वेरी वेल फॉर्म्ड. तो सॉरी मैं स्लाइड मिस कर गया. पहला जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है. हाउ टू प्रोटेक्ट योर ब्रांड ओवरसीज़ के अंदर जो है वो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है आप कंसिडर कर सकते हैं. ऑफ कोर्स ये जो हम लोगों ने 8-9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये डिफरेंट बिजनेसेस पे अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल अगरचे कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अगर आप आपका जो डायरेक्ट मार्केट है, एंड मार्केट है, वो B2B है यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस है, तो शायद आपके लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ना हो, मगर लीगल एग्रीमेंट्स की शायद ज़रूरत ज़रूर हो. और ये सुन्नत भी है कि भाई यू हैव टू थ्रैश थिंग्स आउट, यू हैव टू जो है आप इस चीज़ की डिटेल में जाएं और सारी चीज़ें जो है ना आप देखें. और पेपर वर्क एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, चाहे आप लोकली बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेशनली बिज़नेस कर रहे हैं. और इफ़ यू आर फॉर्जिंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने आप को लीगली भी प्रोटेक्ट भी करें और लीगल एग्रीमेंट्स जो है वो आप साइन अप करें जो है अपने पार्टनर्स के साथ भी. अच्छा, ड्यू डिलिजेंस जो है ये एक दूसरा बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है जिसके अंदर आप जो है वो अपने अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ड्यू डिलिजेंस का मतलब यहाँ पर हम लोगों का ये है नाज़रीन कि आप अपनी रिसर्च जो है वो आप जितनी डिटेल्ड आप रिसर्च कर सकते हैं आप उतनी डिटेल्ड आप रिसर्च करें और उस हिसाब से जो है आप अपना ड्यू डिलिजेंस जो है करने के बाद जो है फिर आप देखेंगे भाई किस चीज़ के अंदर आप अपनी ढाक जमा सकते हैं और किस तरीके से आप मार्केट के अंदर आप एंटर कर सकते हैं. अब मैनुअल्स हैं, मैनुअल्स बहुत लोग स्पेशली हम लोग जो हैं हमारे तबके के जो लोग हैं जिनको मैं एशियंस कहूँगा, माशाल्लाह हमारा पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है इस चीज़ के अंदर हम लोग बहुत पीछे हैं. मैनुअल्स वो चीज़ है, बस ये समझें कि अगरचे कि कोई ये पूछे कि भाई मैकडॉनल्ड्स कैसे बना या ये जो शेल पेट्रोल स्टेशंस हैं वो ख़ुद ब खुद कैसे चलते हैं, ऑटोमेशन कैसे होती है, तो उनकी जो ऑटोमेशन वगैरह होती है वो होती है नाज़रीन मैनुअल्स की वजह से. मैनुअल्स का मतलब ये है कि आपने A to Z डिटेल्ड लिखा है आपका बिज़नेस कैसे ऑपरेट करता है और फिर वो जो है वो आपका एक ट्रेडमार्क या एक आपकी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है कि भाई इस तरीके से मेरा बिज़नेस रन करता है. राइट, तो ज़रूरी है कि अपना क्या नाम है मैनुअल्स जो है वो आप डिटेल के अंदर आप उसको बनाएं. बहुत लोग अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगरचे कि आप किसी चीज़ की फ्रेंचाइज़ भी लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको मैनुअल दिया जाता है कि भाई ये हमारा मैनुअल है, इस तरीके से हम लोग चिकन बनाते हैं या इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर पेंट लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर. तो यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप दैट इन माइंड. अच्छा, ट्रेनिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है. अगर आपने अपने स्टाफ को, लेट्स से आप एक नया ऑफ़िस खोल रहे हैं और आपने अपने स्टाफ को जो है वो ट्रेनिंग देनी है, तो आपको जितनी आप गहरी और इन डेप्थ आप ट्रेनिंग देंगे, अगेन मैनुअल पे भी बात आ जाती है इस बारे में, मगर आप जितनी आप गहरी इन डेप्थ ट्रेनिंग देंगे
उतना ही गहरा और अच्छा आपका प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से जो है वो एक डेप्थ रखता हो। जितना आपका प्रोडक्ट जो है वो शैलो होगा उतना आसानी से दूसरे कंपेटिटर्स आपकी चीज़ कॉपी कर सकेंगे। तो ये है। I'll pass you over. That's very interesting, but you can also find partners and local partners here in Europe and abroad as well. So having partners and the right partners can actually facilitate and help you along, because you may not be able to be in China all the time or India or the overseas market. So, finding a good partner or multitude of partners is another way of cutting your costs. You give them a little bit of percentage or whatever, and they can do the local groundwork and the legwork. And also they have connections that we would only be able to find on the internet. They have personal relationships and connections. अच्छा, पार्टनर्स के बारे में ये है, बिल्कुल सही कहा आपने। वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड बेस्ट वे टू ग्रो ग्लोबली इज़ टू फाइंड लोकल पार्टनर्स, एंड इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे एज़ वेल कि भाई इसमें आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। कि एक इसमें बहुत फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये कि भाई अगला जो आपका पोटेंशियल पार्टनर है जो लोकल मार्केट में बैठा है, तो उसको पता है कि भाई ये लोकल मार्केट कैसे ऑपरेट होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इन लंदन and we have Khalid Javed Saab in Glasgow, so he'll be our local partner for Glasgow and we'll be his partner for London, because we know the markets and we're just talking about this area. Because he would know, absolutely, he knows the local market. Yes. और देखें, हमें वही वाली बात है ना कि अगर हमें वो नॉलेज चाहिए कि भाई हम लोग स्कॉटलैंड में कैसे पेनिट्रेट कर सकें अपने प्रोडक्ट के साथ, तो वो नॉलेज हासिल करते करते हमें टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, हाँ शायद सदियां बीत जाएं, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर जो है ना वो कामयाब हो। तो इट इज़ बेस्ट टू फाइंड लोकल पार्टनर्स। अच्छा, पार्टनरशिप्स के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एजेंट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रीसेलर्स होते हैं। इस चीज़ के अंदर एक और जो है मैं एक कॉशन मैसेज देना चाहूँगा, और वो कॉशन मैसेज ये है कि आपको लोकल लीगैलिटीज़ जो है वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा लफ्ज़ बड़ा हल्का लगता है, राइट, एजेंट, मगर कई दफ़ा ये होता है कि जो उस मुल्क के जो एजेंट के जो राइट्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो राइट्स हैं या रीसेलर्स के जो राइट्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रॉपर्टी वर्ल्ड, in London, you can make, you want to buy a property, you will tell them verbally, yes, I'm interested, I want to buy this property. If you do the same in Scotland, and you say, I'm interested, you've had it. You have to buy it, because you've given your word. That's right. There's no gazumping. Once you've given your word, that's it. The property is yours. That's right. So that's for, you have to know your local things. बिल्कुल। तो ये assume करना, assumption is a killer in business anyway. ये assume करना कि भाई don't assume anything. बिल्कुल, it's very important. So it's very important to have local partners as well, and you've given us very good reasons as to why. बिल्कुल। अच्छा, इसके चंद obviously जो है वो factors हैं कि भाई आप अगर local partner ढूंढ रहे हैं तो आप लोकल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोकल पार्टनर में क्या ढूंढ रहे हैं, राइट, किस टाइप का आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इंटरनेशनल मैरिज, राइट। तो अगर आप एक इंटरनेशनल मैरिज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उस मैरिज के उसूल क्या हैं। Want as well out of it. Exactly. Yes, he might say, I want 50% of everything or 20%. And everything has to be written down. Written down. आप जो है ना जो कुछ भी आपका डिस्कशन है जो है वो इट शुड बी रिटन डाउन। तो मतलब ये देखें ना, इट्स अबाउट मैचिंग द क्वालिटीज़, राइट, कि भाई मैचिंग एक्सपेक्टेशंस, मैचिंग क्वालिटीज़, कि भाई आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, आपका प्रोडक्ट है, आपको ये भी देखना चाहिए कि अगले बंदे का उस चीज़ के अंदर क्या एक्सपीरियंस है। अगर कोई भी हाथ उठा के जो है वो बोल दे कि तमकिन मैं आपका पार्टनर बनने को तैयार हूँ पाकिस्तान में और या किसी भी मुल्क में, और अगरचे कि उसको उस प्रोडक्ट का जो है के बारे में हो सकता है वो 25 साल से कोई बिजनेस कर रहा हो, राइट, मगर दैट डज नॉट मीन कि वो आपके प्रोडक्ट का एक्सपर्ट होगा, ठीक है। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि यार ये तो बंदा जो है ना 20-25 साल से बिजनेस कर रहा है तो उसको तो ये सब कुछ पता होगा। This is where your training and manuals comes in very important. Exactly. ये सब कुछ ओरिजिनेट होता है जो लफ्ज़ है ना क्लैरिटी उससे, राइट।
अगरचे कि आपको हर चीज़ के बारे में क्लैरिटी है, राइट, जी, जी. तो इट इज़ द बेस्ट थिंग because that's the only way you will be able to succeed. And speak openly to your partners. What do they want? What do you want? And then write it all down so there's no ambiguity. Bilkul. Especially when it comes to the shares and the money as well aspect of how much each one is going to get from each sale. Bilkul. Well, this has been such a eye-opening program for myself as well, and I think for yourself, and It I certainly hope has also for the viewers. I'd like to thank you for all your knowledge on this subject of doing international trade and going global, and inshallah we will continue this as well. Inshallah. And I'd like to remind all the viewers as well, don't forget, you can email us, you can contact the Islam channel. And on that, inshallah, we will see you next week, Tuesday, 6:30 here on Islam channel Urdu. Thank you for watching the iBiz show. Jazakallah khair.